Welcome to Shriprati Education online classes. So today we are going to see the next lecture of Photoshop and we are going to discuss in this lecture Move tool. So take a look. Before moving to the Mark You tool, we are going to see the practical of Move tool. So take a look. First of all, click on to the Create New Document. For creating the new document, to click on to the Create New tab. Then the new document window open. Here you can select presets, like photo have their own preset. I'm choosing blank document preset, default Photoshop size presets. Click on to it and then create. It will take a time and then it will open. Now the untitled document is open here. We can call it as a artboard or the canvas where we work. This is the Move tool. When you click on to this, it provide a help moves a selection on layer. ये layers और selection के लिए यूज होता है और इमेज को मूव करने के लिए यूज होता है. ठीक है. Now click on to the file to open an image. Now the image come. Now we will be able to move the image in this document anywhere with the help of the Move tool. I place the image here on the top side of this untitled document and I'm moving the image. I'm going to another image to open. Now the another image is open. Now I'm taking another image from the another window that I have already opened the image and I place it here. Now you can see I'm aligning the two in side by side. Now it will be arranged properly. Now here you can see I'm moving the image like this and this. ठीक है. हम इस इमेज को ऐसे से मूव कर पा रहे हैं यहाँ पे कहीं भी. Now I want to create the two copies of both the images. So press the Alt button and drag here. Here you can see the two cursor changes like this. Okay. कर्सर चेंज हो जाता है, डबल उसमें आने लगता है जब हम उसको कॉपी कर रहे होते हैं, तो सेम इमेज क्रिएट हो रही है. अब आई वांट टू and in the layer panel you can see zero layer. Zero layer is a background layer. First of all it comes into the background and then prompted to convert into a layer. Zero layer में convert हो जाएगी वो. Then it is free for to move. Then layer 1
लेयर 1 ये वाली हो गई, लेयर 1 की कॉपी हमने क्रिएट की वो ये हो गई, लेयर 2 ये हो गई, एंड देन वी हैव क्रिएटेड लेयर 2 कॉपी, ये हो गई. Now I want to combine these four. So with the help of the move tool, I'm moving like this, like this, like this. Okay. हम इसको move कर सकते हैं. Now here are some additional options are given. That is related to the move tool. Auto select. अगर हम ऑटो सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा एक इमेज जो लास्ट इमेज है ना जो क्रिएट की गई है वही सिलेक्ट है, टॉप ऑफ द इमेज सिलेक्ट है. ऑटो सिलेक्ट को अगर हमने अनचेक कर दिया, ये इमेज सिलेक्टेड है, बाकी हम किसी पे भी वर्क नहीं कर सकते. और अगर हम ऑटो सिलेक्ट कर देते हैं तो हम किसी पे भी इमेज को जाके क्लिक करेंगे और वो मूवेबल हो जाती है. देखो मूवेबल हो जाएगी, मूवेबल हो जाएगी, मूवेबल हो जाएगी. सो इट इज अ बेस्ट ऑप्शन कि आप ऑटो सिलेक्ट तो हमेशा ही चेक करके रखें. अब शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल. अभी हमारे पास 4 इमेजेस हैं तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली लेयर सिलेक्टेड है. ठीक है, लेयर 2. अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि लेयर 1 सिलेक्टेड है. नाउ अगर हम इस पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि लेयर 2 की कॉपी सिलेक्टेड है. यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो पता चल रहा है ये सिलेक्टेड है. अभी आप हेयर यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा बॉर्डर लाइन आ रही है. वेरी स्मॉल बॉर्डर लाइन्स आर कमिंग हियर एंड द इमेज दैट इज टू बी इनसाइड दिस बॉक्स. ठीक है, ये जो आपको ब्लू लाइन्स दिख रही है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस. आइदर यू कैन मूव द इमेज लाइक दिस. Okay, you can make it a small image, you can make it a large, or you can transform it, and the shortcut key is for this control T. Okay, this is used for आप ऐसे कर सकते हो इमेज को. और अगर नहीं करना है, अगर ओके है, अगर हमें इसी पोजीशन में इमेज चाहिए तो हम इसको कमिट कर देंगे, एंटर करके कमिट कर देंगे कि हाँ हमें यही रखना है. अगर हमें चेंजेस चाहिए तो हम उसको हटा देंगे कि नहीं हमें अपने रिटर्न बैक कर लिया कि हमें दोबारा से उसी स्टेट में चाहिए फोटो. ठीक है, तो शो ट्रांसफर कंट्रोल हमें बता रहा है. अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये ग्रिड्स जो दिख रही थी ना आपको ग्रिड्स कहेंगे या इसको बॉर्डर लाइन कह दो, जिसके अंदर एक इमेज होती है, इसको ग्रिड्स नहीं कहेंगे, इसको हम बॉर्डर लाइन कहेंगे. तो हम इसके अंदर अब ये कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको यहाँ से पता चल रहा है लेयर्स में कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, पर आपको आपके आर्टबोर्ड पे नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी लेयर सिलेक्टेड है. सो इट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट इट इज ऑलवेज चेक. इसे शो कंट्रोल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, जो हम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर सकते हैं. देखो ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, अगर इफ यू आर सिलेक्टिंग स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड रैप मोड, दैट मीन्स आप इसको चेंज कर सकते हो, रैपिंग कर सकते हो लाइक दिस. ये देखो जैसे किसी मॉकअप्स में यूज होते हैं, अभी हम आगे यूज करेंगे किसी भी चीज पे यूज करने के लिए, तो ये रैप यूज होता है कि हमें किसी भी शेप में चेंज करना है उसको. ये देखो these are the anchor points आ रहे हैं for changing this. okay, ये हमने चेंज कर लिया है, but I don't want it, that's why मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ. इस ट्रांसफॉर्मेशन में कैंसिल कर सकती हूँ. तो इस कैंसिल करने की दो ऑप्शन होते हैं, आइदर यू कैन प्रेस दिस बटन और यू कैन प्रेस फ्रॉम योर कीबोर्ड एस्केप बटन. कैंसिल कर दिया, इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें आ गया है. नाउ here you can see some other options are given also, so click on that. अब ये देखो जैसे ही आपने क्लिक किया, जैसे आपने मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया. ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये दो लेयर्स मैंने आइडेंटिफाई कर ली, एक तो ये लेयर 1 और एक ये लेयर 2. तो मैंने शिफ्ट के साथ लेयर 1 और लेयर 2 को सिलेक्ट किया. लेयर 1 और लेयर 2 को सिलेक्ट किया मैंने, लेयर 1 और लेयर 2 को. ठीक है, शिफ्ट दबा के मैंने लेयर 1 और लेयर 2 को सिलेक्ट कर लिया. देन अब आपने देखा कि जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लाइन है वो आपको ऐसे दिख रही है, दोनों एक साथ दिख रही है कि नहीं दिख रही है. अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसको अभी कुछ जो ये वाली छोटी है मेरी, ये बड़ी है, ये ऊपर जा रही है, ये यहाँ से कम स्पेस है, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी सेंटरली है. अब मुझे अलाइन करना है कि ये टॉप से अलाइन हो जाए. तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो आप लोग, अलाइन लेफ्ट एजेस. तो ये लेफ्ट कर देगा तो वो उसके ऊपर आ जाएगी, जब राइट कर देगा तो ये ऐसे चली जाएगी, सेंटर कर देगा तो ऐसे आ जाएगी.
अगर मुझे इसको और अपने इसको रिटर्न बैक करने के लिए आपको कंट्रोल जेड दबाना है अपने कीबोर्ड से। अब मुझे इसको क्या करना है, अलाइन टॉप एजेस, टॉप से करें हो। तो टॉप के लिए मैंने क्या, ये साइन बना हुआ है टॉप के लिए, तो इसको टॉप कर दिया। ये टॉप से देख रहे हो यहाँ पे एकदम अलाइन हो गया है। और अगर बीच में करना है तो ये बीच में आ गया है, एकदम बीच में अलाइन हो गया है सेंटर। और अगर बॉटम में जाना है तो एकदम बॉटम में अलाइन हो गया है। और अब जैसे कि ये है कि लेफ्ट एजेस, अब ये इसके ऊपर आ जाएगी। जैसे मैंने ये किया, ये इमेज, द इमेज दैट इज अबव द प्रीवियस इमेज, लेयर 1 के ऊपर आ गई। और अगर मैं करती हूँ, अब ये दोनों कंबाइंड हो गई, फिर मैंने ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया कि राइट एजेस अलाइन हो गई, फिर एक दूसरे के साथ इमेजेस रैप हो गई हैं। हाँ ठीक है। नाउ आई वांट टू रिटर्न बैक to its original position. So control Z, control Z, control Z, control Z. So I am coming to the previous state में आ गई, मैं previous state में आ रही हूँ। ओके, तो ये previous state आ गई हमारी, जो पहले हम खत्म कर चुके हैं। अब हमने उसको हटा दिया, तो ये तो हो गया हमारी ऑप्शन। अब मुझे इन चारों इमेजेस को प्रॉपरली अलाइन करना है, तो कैसे करूँगी? देखो मैंने सब सिलेक्ट कर लिया, एक सब शिफ्ट के साथ दबा के, 1 2 3 4, ओके, एक सारी चारों को इमेजेस को, और इसको एक प्रॉपरली इमेज अलाइन कर दिया, तो ये ऊपर पहुंच गया चारों। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। अब डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ कि भैया ऐसे हमें नहीं चाहिए, ये थोड़ा गलत हो जाएगा सिलेक्शन। ये देखो, ये दो दो के पेयर में सिलेक्ट होंगे, हम इसको दो दो के पेयर में सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ आई एम अरेंजिंग द इमेजेस। अब मैं इमेज अरेंज कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा मैंने इसके साइज को बराबर कर लिया, इसको लार्ज कर लिया साइज को, ठीक है, यहाँ से। ये देखो, शिफ्ट अब कंट्रोल दबा के मैंने इसके साइज को थोड़ा सा लार्ज कर लिया, ठीक है। देन ये कंट्रोल, ओके, एंटर दबा दो, कंट्रोल डी कर दो उसको डिसेलेक्ट करने के लिए, तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये देखो, फिर हमने कंट्रोल डी कर दिया, तो ये पहले एंटर कर दो यहाँ से, इसको सिलेक्ट करके या इस बटन को क्लिक कर दो, फिर अगेन यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये भी एक इमेज बन गई हमारी, ठीक है, फिर से सिलेक्ट कर दिया, तो हो गया हमारा ये। अब ये चार इमेजेस हमारी बन चुकी हैं, हमने चारों इमेजेस को कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द मूव टूल। अब देखो, now we see the second option of move tool is artboard tool, or you can press V for selecting the move tool। अब मैंने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने एक आर्टबोर्ड बनाया, ये देखो, अब ये एक आर्टबोर्ड हो गया। पहले तो मुझे इस आर्टबोर्ड में कितना चाहिए वो मैंने सेट कर लिया कि मुझे इस आर्टबोर्ड में इतना, एक ये फ्लावर चाहिए और एक ये फ्लावर चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसको इमेज को छोटा कर दिया मैंने, ये आर्टबोर्ड में मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इतना 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 पार्ट चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ से इस वाले पार्ट को भी हटा दिया, नीचे कर दिया इसको, ये भी हट गया, और इसको तो हमने बड़ा कर लिया, और ये वाले पार्ट को हटा दिया हमने, ये वाला भी इमेज हटा दिया यहाँ से। ये दो इमेजेस को हमें चाहिए आर्टबोर्ड में, हमने सिलेक्ट कर लिया कि इतना ही इमेज हमारी देखे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हमने कर दिया, ये हो गया आर्टबोर्ड में, इस आर्टबोर्ड में इतना ही सिलेक्ट हुआ।
ठीक है, अब अगेन हम आर्टबोर्ड में एक और आर्टबोर्ड हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल Z कर दो अब इसको। अब ये किस यूज आता है, ये देखो, ये आर्टबोर्ड एक कैनवास की तरह होता है जिसमें हम अपनी इमेजेस को इस पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो इमेजेस हमने वहां से ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने यहाँ से सब डिलीट कर दिया इस आर्टबोर्ड पे से, यहाँ पे रख लिया सब कुछ, ये देखो। नाउ मुझे सिर्फ एक इमेज इस आर्टबोर्ड पे चाहिए ये, तो ये इमेज आ गई आर्टबोर्ड पे, प्लेस हो गई इमेज आर्टबोर्ड पे, कि मुझे सिर्फ यही इमेज चाहिए थी, उसको मैंने छोटा कर दिया, ये प्लेस हो गई। एंड देन, और हाँ, अब मैंने इसको एंटर कर दो या कमिट कर दो, यहाँ से कमिट बटन से, ये प्लेस हो गई आर्टबोर्ड पे इमेजेस। ना रिटर्न बैक कर लेते हैं अब हम, एक ऑप्शन और समझने के लिए, कि हमने यहाँ से आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, आपने एक आर्टबोर्ड ड्रॉ किया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे देखा प्लस करने के लिए कि आर्टबोर्ड ऊपर की तरफ बनेंगे, न्यू ऐड होता जाएगा इसके ऊपर, इसके न्यू आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगा राइट में, और नीचे ऐड हो जाएगा बॉटम में। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ये 4 इमेजेस हैं। I place one image here in artboard 2. I place second image in this artboard and the one image यहीं की यहीं रह गई, और एक इमेज हमने इसमें कर दिया। ये चारों की चारों हमने प्लेस कर दी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका कलर कैसा है, ब्लैक है। इस आर्टबोर्ड का कलर कैसा है, व्हाइट है। अब यहाँ देख रहे हैं कितने आर्टबोर्ड हमने ऐड किए, 1 वाला आर्टबोर्ड ये वाला है, 2 वाला आर्टबोर्ड ये वाला है, 3rd वाला आर्टबोर्ड ये है, 4th आर्टबोर्ड ये है जो हमने ऐड किए थे। ठीक है, thank you. So this is the work of the artboard and the move tool. We will see the mark you tool in our next lecture. Thank you. So please stay safe at your home during coronavirus, and don't forget to subscribe our channel to get the latest updates. Also press the bell icon